प्यारे बच्चों, आज का नया टॉपिक जो है वो है इंडक्टेंस। चैप्टर नंबर 6 बहुत सारी एप्लीकेशंस के साथ में है, मतलब पूरा का पूरा फिजिक्स एप्लीकेशन बेस्ड। अभी हम लोग देख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले इंडक्टेंस क्या है वो समझा दो। आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो। इंडक्टेंस का मतलब आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, लेकिन वो वर्ड मैंने बताया नहीं था। याद करो, एक कॉइल था यहां पर, दूसरा कॉइल यहां पर था। इसमें से करंट फ्लो होने से इसके साथ में फ्लक्स लिंक हो रहा था। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस। सेम वर्ड इज यूजिंग हियर, इंडक्टेंस, दैट्स इट, है ना? ओके। ऐसे दो कॉइल होती है तो होता है, ऐसे एक कॉइल का खुद का भी इंडक्टेंस खुद के साथ में लिंक होता है। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। हमको दोनों चीजें समझनी है, दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी समझनी है। एक सेल्फ इंडक्टेंस है, दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। पूरा का पूरा थियरी एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब समझना है उसको अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर से अभी तक पूछे गए और ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है इसके साथ में जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वर्ड टू वर्ड यहां से ही मैं सब कुछ उठाऊंगा, आपको वही लिखना है। कम से कम 5 या 7 सेंटेंस ऐसे ही मिल जाएंगे। As shown in the figure, there are two coaxial solenoid. Number 1, the solenoid S1. Number 2, the solenoid S2. Both the solenoid with the same length and they are coaxial. Both the solenoids are the long solenoid. That means the length is more with compared to its cross-sectional area. Then after, radius of the inner solenoid is R1. The total numbers of turns for the smaller solenoids are N1 and numbers of turns per unit length, it is called N1. ये लिखेंगे तो ये आएगा numbers of turns per unit length. Same way, the radius of the outer cylinder, bigger solenoid is R2. The total numbers of turns in the second solenoids are N2. And you can say that here, the numbers per unit length, total numbers of turns per unit length are N2. अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब मैं समझा दूं। If the current is flowing through this outer solenoid, that means bigger solenoid, the flux is linked with the inner solenoid, and due to that, the EMF produced in the inner solenoid, that we want to calculate. But first of all, we are calculating the mutual inductance, that means theoretically. So to calculate this mutual inductance, the main important property, physical quantity, that is called the flux. So the flux linked with the flux induced or flux linked with the inner solenoid is, you can say that phi1, and this phi1 is proportional to the current in the outer solenoid, that is called I2. Now, it is possible in the case when there is only a turn in this one. But as we already said that N1s are the total numbers of turn in this inner solenoid. So flux linked with the complete inner solenoid is N1 phi1 is proportional to I2. That means इसमें लिंक होने वाला फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इसके ऊपर डिपेंडेंट। और इसमें भी क्या होगा? करंट। क्यों? जैसे करंट इंक्रीज होगा, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, दैट इज B is equal to mu naught Ni. This one is applicable to the outer solenoid, and this current is increasing, this B is increasing. As the B is increasing, the flux in the inner solenoid is also going to increase. Now, my dear friends, if I remove this proportionality sign, then I have to say it is N1 phi1, it is equal to M12
and it is I2. This is the equation number 1. What about this M12? What is M12? So यहाँ पे लिखना पड़ेगा M12 है क्या? So M12 is the mutual inductance of किसका? Solenoid 2. Mutual inductance of S1. इसका है with respect to S2. अगर S2 में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया. फर्स्ट यूनिट आप इसके ऊपर से बनाओ. The first unit of this one is on the basis of this M12 is equal to, you can say that N1 phi1 divided by I2. Right? So here the unit of this flux is, you know that it is Weber, and divided by the current, it is called ampere. So this is the unit of it. इसके ऊपर से अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक डेफिनेशन देनी है तो आप दे सकते हो. Per unit current, whatever the amount of flux linked in this coil or in this solenoid is called the mutual inductance. Definition ऐसे बनाएंगे. The flux induced in a inner cylinder per unit current in the outer cylinder, cylinder बोल देता हूँ, solenoid. Okay, so the flux linked with the or induced in the first solenoid with respect to the unit current in the other solenoid is known as the mutual inductance. Common definition. अभी मुझे 1 का बोलना है 2 के रिस्पेक्ट में, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ. So the current, okay, flux linked with the first solenoid with respect to the current in the unit current in the outer or the second solenoid, it is called the mutual inductance of the first one. Sorry, mutual inductance of the first one with respect to the second one. हो गई बात क्लियर? Now I want to calculate this one. मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ इसके लिए? So मैं लिख सकता हूँ N1 it is equal. Now फ्लक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, थोड़ा बहुत डिटेल हम लोग अंदर से नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं. फ्लक्स y इज इक्वल टू BA cos थीटा. अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे रहेगा तो थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी ये डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है. सो दिस थीटा इज इक्वल टू 0. cos 0 is 1, so it is just BA लिखना पड़ेगा. ओके, सो N1 फाइंड. नाउ the total numbers of turns here, you know that it is N1 into N. ये कैसे लिखा और किसके लिए लिखा? N1 के लिए. क्यों लिखा और कैसे लिखा? देखो, यहां पे मैं लिखता हूं लेंथ और यहां पे लिखता हूं टर्न्स. अगर यूनिट लेंथ है तो N1 टर्न्स है, L लेंथ होगी तो कितने टर्न्स होंगे? So it is L into N1. And this is nothing but the total numbers of turns. It is called N1. हो गई बात? नाउ ये हो गया N1 की जगह. अभी मुझे फाई रखना है तो मैंने बता दिया, फाई इज इक्वल टू, यू कैन से दैट इट इज नथिंग बट बी. यहां से उठाए, cos क्यों नहीं लिखा? बताया, cos 0 is 1. नाउ इट इज N1 into L. What is B? बता दिया, B is the magnetic field produced due to the outer solenoid, and this is given by the formula that is mu naught N2, क्योंकि outer cylinder है बच्चों, N2 into I, but this I is nothing but I2. आइए ना बात समझ में. अभी एरिया किसका लेना है? याद रखना है, बहुत अच्छे से मिस्टेक हो सकती है. This area is the area with which the flux going to link, going to induce. So ये फ्लक्स ये इसके साथ में एसोसिएट होने वाला है यहां पर. So फ्लक्स इसके साथ में आएगा ना बच्चों, तो इसका एरिया लेना पड़ेगा. This one. This area is nothing but, you can say that it is pi r1 square. That is all. तो ये हो गया N1 phi1. अब ये N1 phi1 को मैं यहां पे रख दूं तो I2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? सो मैं लिख रहा हूं, देखो, by using what? By using what?
अच्छे से समझ बाय यूजिंग बट दिस N1 यहां पे मैं सब ये वाला, सो इट इज N1 L, then it is mu naught N2 I2 pi R1 square. This is equal to what? This is equal to, you can say that M12 into this is I2. This I2 and this I2 gets cancelled. So therefore this M12, what is M12 my dear friends? M12 is the mutual inductance of S1 with respect to S2. S1 and S2 are the two solenoids. Right. Now we arrange it in a proper way. So it is mu naught, then it is pi, okay, pi mu naught, then L. Constant को पहले लिख देते हैं ताकि तकलीफ ना हो. Pi mu naught L. Then it is N1. Then it is N2. Then the remaining one is R1 square. So this is the formula for the M12 my dear friends. देख लेते हैं फिर से कुछ बाकी ना रह जाए. M12 ये दिख रहा है हमने, पाई आ गया, then L1 L हो गया, N हो गया, तीन हो गए. अभी N1 N2 and R1 square. Right? So ये हो गया mutual inductance of the S1 with respect to S2. कोई बोलेगा सर इससे उल्टा पॉसिबल है? यस, इससे उल्टा भी पॉसिबल. उल्टा मतलब क्या होगा? इफ द करंट इज पासिंग थ्रू द इनर सोलेनॉइड, then the flux is linked with the outer solenoid also, and due to that the flux going to link in this one, so you are getting the flux link with the inner solenoid. In place of that one we have to write outer solenoid, right? So we are going to discuss this thing also. ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. Now, if current through the inner solenoid is I1, therefore flux link with the outer solenoid is, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, N2 phi2 is proportional to I1. देख लो बिल्कुल इससे उल्टा हो गया. अभी किसके साथ में फ्लक्स लिंक हो रहा है? आउटर के साथ. क्यों? करंट कहां से पास हो रहा है? इनर से पास हो रहा है. समझने वाली बात होती है. Current is going to pass through the inner solenoid and the flux is linked with the outer solenoid. आइए ना बात समझ. ना फिर से मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करता हूं तो मैं लिख सकता हूं N2 phi2 इट इज इक्वल टू M12 की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा M21 and I2. This is the other equation and it is number 2. आ रही है बात समझ में बच्चों? नाउ अभी फिर से इसके जैसा फॉर्मूला मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा M21 इट इज इक्वल टू N2 phi2 अपॉन I1. सेम तरीके से मिल रहा है तो इसका भी यूनिट वही होगा, सेम टू सेम. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये लिख दिया M21 क्या है, तो मैं सॉरी M12 क्या लिख दिया, वैसे मैं M21 के लिए लिख रहा हूं. M21 is what? It is the mutual inductance of S2 with respect to S1. आई ना बात समझ में अभी? इट इज क्लियर नाउ? फाइन. तो अभी ये बात हमारे पास क्लियर हो गई कि क्या होने वाला है. जैसे ये बना है ना मैंने, वैसे इसके लिए बना देता हूं. सो प्यारे बच्चों, यहां पे लिखेंगे N2 and phi2. क्या लिखूंगा मैं? कॉपी करनी है. N1L की जगह पर मैं लिखूंगा N2L, क्योंकि दोनों की लेंथ तो सेम है. ओके, BA तो BA, अभी मैंने यहां पे क्या लिखना था बताएं? B2A लिखना था, राइट.
तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा B1 एंड A। आप बोलोगे सर एरिया, यस, सेम एरिया वी हैव टू टेक हियर। आप याद करके रखिए कि मैंने एरिया सेम क्यों लेना है। यहां पर आप याद करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर याद नहीं आ रहा है तो लास्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। नाउ इट इज इक्वल टू N2L तो रहेगा ही रहेगा, N2L। Now the same B1 due to this inner solenoid, same formula my dear friends, it is equal to mu naught N1 and then I1, right? Area is going to same. सर बता दो, नहीं बताऊंगा, अभी लास्ट में बोलूंगा क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। Now my dear friends, अभी मेरे पास ये सेम चीज यूज करनी है नंबर 1। So यहां पे लिखेंगे by using 1 की जगह पर 2, right? By using 2, this N2 phi 2, you have to say this one. So it is equal to N2 L mu naught N1 I1 pi R1 square, right? Now on the right hand side I have to say, okay, गलती करी मैंने यहाँ पर, आप बोले नहीं करंट कितना है बच्चों, I1, मैंने क्या लिख दिया I2, नॉट फेयर है ना। आप गलती करोगे तो मार्क्स जाएंगे एग्जाम में, यहां पर करेक्ट कर लेते हैं, राइट। इट इज इक्वल टू M21 एंड I1, सो अभी क्या करेंगे बच्चों, ये I1 और I1 को उड़ा देंगे, तो अभी बचेगा M21। सो मैं क्या कर सकता हूं M21 के लिए, सो जस्ट सी हियर M21 इज इक्वल टू, क्या लिखा था पहले हमने पाई, सो पाई लिख देता, देन म्यू नॉट, देन L, देन ओके N1, देन N2, देन R1 स्क्वायर। कुछ दिमाग में सेट हो रहा है क्या? What about, okay, इसको भी नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 1, तो नंबर 2 देना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, इसको नंबर 3 देना पड़ेगा। तो अभी कहीं पे लिखा था हम लोगों ने बाय यूजिंग 2 की जगह पर बाय यूजिंग 3, नंबर 4। समझ में आ रहा है? नंबर 2 एंड नंबर 4 सही में देख लो एकदम अच्छे से। पाई म्यू नॉट L, पाई म्यू नॉट L, N1 N2 R1 स्क्वायर, N1 N2 R1 स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? आ रही है बात समझ में? सो फ्रॉम 2 and 4, what can we say? We can say that M12 is equal to M21 is equal to M. This is nothing but the one symmetrical physical quantity that you are getting. Symmetrical का मतलब क्या होता है? अगर एक में करंट तो दूसरे में म्यूचुअल इंडक्टेंस लेना है, दूसरे में करंट तो पहले में लेना है, दोनों का वैल्यू सेम मिलता है, and this is called the reciprocity theorem। हमारी बुक में वो नाम नहीं दिया है, नाम लिखना है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी का मतलब यहां पर क्या होता है, इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द आउटर सोलेनॉइड एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट वन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, दैट इज M12, it is equal to if the current is flowing through the first solenoid and the mutual inductance of the second solenoid, that is M21, both are same। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा है। यहां पर M12 एंड M21 का कैलकुलेशन करना, किसका कैलकुलेशन इजी है किसका डिफिकल्ट है? अगर एक का करेंगे दूसरा आपको मिल जाएगा, है ना। देखो अगर आउटर में से करंट फ्लो हो रहा है तो ये छोटे वाले के साथ में फ्लक्स कैलकुलेट करना इजी रहता है, क्योंकि इसका एरिया मालूम है, पूरा का पूरा भरा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? If the current is passing through the smaller solenoid, then the flux link with this outer solenoid, पूछा था ना मैंने कि ये एरिया इतना क्यों लिया फिर से पाई R1 स्क्वायर, तो याद करो कि अगर एक बड़ी वाली पाइप है उसके अंदर छोटी वाली पाइप रख दी है, तो पानी बड़ी वाली पाइप में से जा रहा है, तो यू कैन से दैट इट इज आल्सो पासिंग थ्रू दिस स्मॉलर वन आल्सो। याद करो, देखो ऐसे एक बड़ी वाली पाइप है ना, ऐसे एक छोटी वाली पाइप। तो अगर पानी बड़ी वाली पाइप में से जा रहा है तो छोटी वाली पाइप में से भी जाएगा। लेकिन लेकिन लेकिन
अगर सिर्फ पानी छोटी वाली पाइप में से जा रहा है तो ये बड़ी वाली पाइप में से भी इतना ही पानी जाएगा। बस ये कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर हम लोगों ने यूज किया कि अगर फ्लक्स पूरा आउटर सोलेनॉइड में है तो इनर में होगा ही होगा, लेकिन इनर में है तो सिर्फ इनर का एरिया लेना पड़ता है। ये सब खाली जगह है, ये सब खाली जगह है, वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए ये एरिया लिया। लेकिन फील्ड है ना बच्चों, फील्ड है ना, तो ये यहां पर भी थोड़ा बहुत अपने आप में इंड्यूस्ड होके आता है, ये वाला। तो आउटर सोलेनॉइड के साथ में जो ईएमएफ मिलता है, आउटर सोलेनॉइड के साथ का म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलता है, ये कैलकुलेशन करना थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। और ये थियरी हमको यहाँ पे हेल्प करती है कि अगर हमने अंदर वाले सोलेनॉइड के लिए फाइंड आउट कर लिया म्यूचुअल, तो बाहर वाले सोलेनॉइड के लिए इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और ऐड कर दे, क्या ऐड कर देते हैं बच्चों, देख लो कि अगर हमने ये सोलेनॉइड के अंदर कोई सॉफ्ट आयन रख दिया होता तो क्या फायदा होता। सर और कुछ नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला जो था ना म्यू नॉट, ये बढ़ जाता। सही बात है। तो वो केस के अंदर m का फॉर्मूला क्या रखना पड़ता। If the inner portion of the solenoid is filled up with the soft ion, then what happens? So in that case, this formula or this formula, तो इसके अंदर पाई तो पाई रहेगा ही रहेगा। This mu naught is replaced by mu, so it is mu, then L, then N1, N2 and R1 square। आई बात समझ में। अभी ये mu के लिए क्या लिख सकता हूं, तो यहां पर लिख सकते हैं, बट this mu R is equal to mu upon mu naught, so therefore you can say that this mu is equal to mu naught or mu R into mu naught, relative permeability। So therefore this M is equal to what, so it is pi and this 2, that is mu R mu naught, बाकी सब same, L N1 N2 R1 square। तो ये फॉर्मूला दोनों आपके लिए एकदम से इंपॉर्टेंट रहने वाले। कैसे? एकदम से इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरा यूनिट ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का हो सकता है, तो दूसरा यूनिट क्या है, हेनरी। एक यूनिट तो हम लोगों ने लिख दिया, दूसरा यूनिट जो है वो हेनरी है। H सिस्टम से लिखना पड़ता है यार, पूरा नाम लिखूंगा हेनरी तो लिखना पड़ेगा स्मॉल h से स्टार्ट करके। व्हाट अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस वन, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा बच्चों m1 l2 t-2 and a-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके, लास्ट एक बात, किसके ऊपर डिपेंडेंट है। So this mutual inductance is depending on the numbers of turns, नंबर एक। दूसरा shape of the solenoid। तीसरा इसके अंदर का जो मटेरियल फिलअप करने वाले वो, that means medium inside the solenoid। And last is orientation of the two coils। ये तो हम लोगों ने एक दूसरे के अंदर रख दिया। अगर बाहर भी रखा होता है ऐसे coils को, मतलब if I place two coils like this, एक यहाँ पर रखा है, दूसरा यहाँ पर रख दिया है, तो इसमें भी मिल सकता है। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स, टू कॉइल्स का ओरिएंटेशन कैसे करना, ऐसे। अभी दो कॉइल ऐसे रखिए, एक ऊपर ले जाएंगे, फ्लक्स लिंक होना डिफरेंट हो जाएगा। यहां पर है लेकिन ऐसे कर दिया तो फ्लक्स डिफरेंट हो। सो ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो फोर फैक्टर्स हो गए। नंबर 1 नंबर्स ऑफ टर्न्स, नंबर 2 एरिया, दैट मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया, शेप ऑफ द एरिया, नंबर 3 you can say the medium inside the solenoid, and number 4 orientations, right? So this is all about the mutual inductance। इसके साथ में जुड़ा हुआ एक और छोटा सा टॉपिक बाकी है, EMF कितना जनरेट होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे इसी के साथ, राइट। ओके, क्या बोला था, EMF जनरेट करना। So how can I calculate the amount of EMF which is generated in a second coil due to the flux induced by the first one? So suppose we have, okay, suppose we have two coils like this. One coil is here and second coil is here.
we are not giving the number 1 and 2, right? But the thing is that the current through this one is I. The numbers of turns here are n. The flux link with this one is phi. So as we know the formula of the flux link with this coil C1 and this one is C2. So the current through this C2 is I. The flux link in this one is total numbers of turns are n. The flux link is phi. So I just write n phi is proportional to I. Right? If I remove this proportionality sign, then it is n phi is equal to m into I. This m is what? It is the mutual inductance. We are not giving the number 1, 2 and 2, 1 like that. So now, I want to get the EMF. According to the Faraday law, you know that EMF E is equal to n into d phi by dt with the negative sign. So, just you differentiate this equation with respect to time t. That's all. Now, same way I have to differentiate this one. But you know m is constant. And that's why I have to define this di by dt. But there is a negative sign. ये फॉर्मूला आई कैसे? मैं समझाऊं आपको? इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता तो n लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा d phi by dt. M is constant, so just I write di by dt by this way. We are getting the answer. So now I take minus here and minus here. So two minuses are there and it is nothing but e. तो E हो गया. आई बात समझ में? By this way we are getting the answer for EMF E. So therefore this E is equal to minus m into di by dt. So this is the amount of EMF generated in this one. This negative sign is again present due to what? Due to the Lenz's law. It is very cause. That means जिससे हो रहा है उसी का magnetic field का ये oppose करेगा, right? Now ये mutual inductance का formula लिखना है. N is equal to just I write E upon di by dt. Mutual inductance. Minus sign नहीं ली है मैंने. लेना चाहो तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Now if I write the unit, तो EMF का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, टाइम का सेकंड तो ऊपर ले जाओ, so it is वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर. अभी आगे ही बताया था थोड़ी देर पहले, this is equal to H and H is stand for Henry. It is the unit of mutual inductance. जोसेफ हेनरी साइंटिस्ट जिसने ये सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसकी मेमोरी में ये यूनिट को नाम दिया है हेनरी. और एक बात बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ दिस वन, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन. EMF induced in a coil or solenoid due to the unit rate of change of current through the second coil, that is called the mutual inductance. और आगे एक डेफिनेशन इसी के ऊपर से बताई थी, देख लेना यही लेक्चर में. अगेन EMF induced in the second coil or EMF induced in the coil due to the unit rate of change of current through the other coil, and this is nothing but the mutual inductance. That's it. ये यूनिट भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का है, इससे भी यूनिट बताया था, वो भी देख लेना. H हेनरी, ये भी यूनिट, 3 यूनिट हो गए. और डायमेंशनल फार्मूला तो एक ही रहेगा सबका, क्योंकि फाइनल तो वही है, राइट? अभी ये समझाया, सॉरी ये सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है प्यारे बच्चों, है ना? ये टॉपिक नंबर भी नहीं है, निकाल देता हूं. दिस इज ऑल अबाउट द EMF in the second coil due to the current in the first coil. क्वेश्चन में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? क्वेश्चन लिखना चाहता हूं, obtain the formula for the EMF generated or EMF induced in the second coil due to the current in the first coil. 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है, तो इतना लिखना है. डायग्राम नहीं दिया आपकी बुक में, कोई बात नहीं, आप अपने आप ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सेल्फ इंडक्टेंस. बच्चों ये वाले टॉपिक में क्या समझाने बताएं? जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो एक ही कॉइल से मिलता है.
म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो दो कॉइल से मिलता था, अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बताया था। गलती से मैंने ये टॉपिक वहां पर लिख दिया था, तो थोड़ा ध्यान में रख के उसको देख लेना है कि ये टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है। और एक बार क्या होने वाला है समझ में आ रहा है? सपोज आई हैव अ कॉइल लाइक दिस, देन उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऐसी मिलेगी, राइट? देन व्हाट हैपन, सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अगेन कोइंसाइडिंग विद दिस वन, ऐसे अपने आप यहां से फिर से कोइंसाइड होती है। तो ऐसा होने से फ्लक्स इंक्रीज होता है, वो फ्लक्स इंक्रीज होने से सेम इंडक्शन फॉर्मूला बनता है, and due to this EMF is again induced in this one, EMF is again generated in this one. So this is the thing, this physical phenomenon is known as the self-inductance. So if the current is flowing through the coil or a solenoid, then some magnetic field lines again induce with itself, due to that the EMF is generated in the coil, and this phenomenon is known as the self-inductance. क्या बोला मैंने? ऐसी कोई सॉलिनॉइड या कॉइल में से करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। सो दैट्स व्हाई सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप फिर से इसके अंदर इंड्यूस होती है, और ड्यू टू दैट रीजन ईएमएफ जनरेट होता है, और उसी को नाम देते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे म्यूचुअल था, दो था, यहां पे एक ही है ना। व्हाट अबाउट द फ्लक्स लिंक इन दिस वन? सो सपोज इसके अंदर टोटल नंबर्स ऑफ टर्न्स n है, इसके अंदर से करंट जो पास हो रहा है वो I है, यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक होने वाला है वो phi है। लिंक होने वाला फ्लक्स खुद का नहीं, लिंक होने वाला एक्स्ट्रा वाला फ्लक्स। सो नाउ यू कैन से दैट इट इज n phi b इज प्रोपोर्शनल टू I। खुद के करंट से मिलने वाला है, समझ में आना चाहिए। देन n phi b इज इक्वल टू Li। Again, what is L? So here L is equal to, you can say that it is nothing but self inductance of n इंडक्टर। आगे जाके इसको हम लोग नाम देने वाले इंडक्टर, राइट? अभी नाम नहीं दे रहे, अभी इंडक्टर नाम दे रहे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड, ऐसा भी बोल सकते हैं। अभी इसके ऊपर से मैं आपको यूनिट दिखा दूं, इसका नंबर दे देते हैं नंबर 1। तो अभी इसका यूनिट होता है L इज इक्वल टू n phi b अपॉन I। मेरे प्यारे बच्चों देख लो, इसका यूनिट मिल गया, वेबर अपॉन एम्पियर। किसके जैसा हो गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसा हो गया कि नहीं, है ना? देन आफ्टर इसका दूसरा यूनिट मैंने बताया था आपको, दूसरा यूनिट क्या था? हेनरी, राइट? हेनरी, उसका दूसरा यूनिट। तो डायमेंशनल फार्मूला भी वही रहेगा ना, क्या रहेगा? m1 l2 t-2 एंड t-2, राइट? तो उसका डायमेंशनल फार्मूला। और आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे बढ़ने में? तो जैसे हम लोगों ने लास्ट में वहां पर एक फार्मूला बनाया था सेल्फ इंडक्टेंस का, वैसा ही कुछ यहां पर मुझे फार्मूला बनाना है। तो मैं यहीं पे ये वाला वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, राइट? सो n phi b इज इक्वल, बच्चों n क्या है? n द टोटल नंबर्स ऑफ टर्न्स। तो मैं यहां पे छोटा वाला n लिखता हूं, और ये सॉलिनॉइड की लेंथ को मैं बोल देता हूं l, राइट? ये लेंथ को बोल देता हूं l। सो व्हाट अबाउट द रिलेशन ऑफ दिस वन एंड दिस वन? सो जस्ट आई राइट दिस n इज इक्वल टू n। यूनिट लेंथ के अंदर n टर्न्स होते, तो l लेंथ के अंदर कितने? l into n, this is nothing but n. So therefore this is nothing but n की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा n into l। अभी प्यारे बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, फ्लक्स phi is equal to ba cos थीटा, राइट? अभी थीटा तो 0 हो जाएगा, so cos 0 1 हो जाएगा। b मैग्नेटिक फील्ड, सॉलिनॉइड का खुद का मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखूंगा मैं b के लिए? सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni, और a के लिए सर्कुलर है तो मैं लिख सकता हूं पाई r स्क्वायर। कोई बोलेगा स्क्वायर तो l स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ
this 5 can be replaced by 2. It is mu naught n I and pi r square. Right? If I substitute this one here, so मैं करूंगा by using 1. एक में यूज करें तो इसकी जगह पर ये लिखना है, तो इट इज n l mu naught n I pi r square and it is equal to li. Right? बच्चों और कुछ नहीं कर रहे हैं, I उड़ा दो. Therefore, what can I say? So this L is equal to mu naught L, then n into n is n square. Pi तो रखना ही पड़ेगा ना बच्चों, pi है ना. This is equal to pi and r square. बहुत सारे MCQ आप पास्ट में देख लेना, बहुत सारे MCQ इसके ऊपर से पूछे गए और ज्यादातर जो बेस्ड है वो मैं आपको बताता हूं. This L is proportional to n square, L is proportional to r square. ये बेस के ऊपर सबसे मैक्सिमम पूछे जाते हैं. अगर नंबर्स ऑफ टर्न्स डबल होते हैं, नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डबल होते हैं, तो इंडक्टेंस 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है. वैसा ही किसके साथ में होता है? रेडियस के साथ में. ये राइट. तो ध्यान में रखना था. तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया. अभी इसके अंदर ईएमएफ कितना जनरेट होता है वो फाइंड करना है. सो फिर से हम लोग फॉर्मूला लेंगे 1. सो बाय यूजिंग 1 n तो n रहेगा ही रहेगा, d5 by dt मैंने कर दिया. राइट? इट इज इक्वल टू l into di by dt. I put negative sign in both the terms, left and right. So it is minus n into d5b by dt is equal to minus l into di by dt. प्यारे बच्चों, ये तो फैराडे कह गए हमारे. फैराडे क्या कह गए कि प्यारे बच्चों, अगर ऐसा फॉर्मूला दिखे माइनस के साथ में तो ये लिख देना. तो हम लोग लिख देते हैं, फैराडे की बात मान भी लेते हैं, l into di by dt, है ना. So this is nothing but E. This is number 3. एक ध्यान रखने वाली बात ये हो गई कि इसमें से अगर मैंने L का फॉर्मूला बनाया ना, तो वो n के जैसा ही बन जाएगा. L is equal to E upon di by dt. बच्चों ये नेगेटिव साइन है ना, फैराडे से लेंस पे पुट अप करना है हमको, तो ये लेंस के लिए है. Now this is L. So how can I define this L? So ये मेरे पास 2 डेफिनेशंस बन सकती है. यहां से थोड़े बहुत एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन आएंगे ना. तो डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस बाय 2 वेज. तो इसके ऊपर से डिफाइन, राइट देयर यूनिट्स एंड डिफाइन हेनरी. सब कुछ मैं बताता हूं. द फ्लक्स लिंक विद द यूनिट अमाउंट ऑफ करंट बाय इटसेल्फ विद द सोलेनॉइड, देन इट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर और द सोलेनॉइड. EMF is generated or EMF is induced due to the unit rate of change of current. Unit rate of change of current per unit time or per second, then it is called the self-inductance of the inductor of an inductor. दूसरी बात, अभी इसका यूनिट हेनरी डिफाइन करना है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना. If 1 volt EMF is generated or induced per 1 ampere per second rate of change of current, then this induced EMF is known as its self-inductance. It is called the self-inductance. If 1 volt EMF is induced per unit rate of change of current, bracket में 1 ampere per second, then it is called the self-inductance and it is called the Henry. So ये सब कुछ हो गया उसमें. अभी मेरे पास ये जो L है, हम लोग उसको नाम देते हैं बैक ईएमएफ. बैक ईएमएफ का मतलब क्या होता है बच्चों? जो उसको दे रहा है उसका ही वो अपोज करेगा. जैसे बताया था एडी करंट्स वाला, वही जैसे बताया था इंडक्शन में, वही. तो इससे करंट, यही कॉइल का करंट आपको ईएमएफ दे रहा है.
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड उसी का अपोज करेगा एंड ईएमएफ इज जनरेटेड, दैट्स व्हाई दिस ईएमएफ इज नोन एज द बैक ईएमएफ। ये बैक ईएमएफ है, उसी से नेगेटिव साइन कई बार आती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो L है सेल्फ इंडक्टेंस है, it is the analogous physical quantity in the mechanics, or you can say that in the motion it is related with the m mass, और रोटेशनल मोशन के साथ में आता है, तो दिस इज आल्सो नोन एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर लीनियर मोशन या सिंपल मैकेनिक्स में आता है तो उसको मास भी बोल सकते हैं, या आप उसको अगर रोटेशनल के साथ में जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। सो दिस आर द एनालॉगस बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड यू कैन से दैट द मैकेनिक्स। अगर सो इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या कराने वाला हूं, इसके साथ में जुड़ा हुआ एक एनर्जी का रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। आज के लिए सफिशिएंट है। ओके।